अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से सत्ता संभाली है तब से रूस यूक्रेन के बीच लंबे समय से चल रही जंग में मध्यस्थता करने की कोशिश की है। इस सिलसिले में कल उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और इस बीच दोनों नेताओं ने युद्ध विराम समझौते पर लगभग 45 मिनट तक बातचीत की, लेकिन दोनों नेताओं के दरमियान बात नहीं बन सकी और मामला हल होने के बजाय मामला और संगीन हो गया। इस बातचीत के दौरान ज़ेलेंस्की अपने दावे कर रहे थे तो ट्रंप अपने तेवर दिखाते हुए नजर आए। On the deal. That doesn't work that way. I'm not aligned with Putin. I'm not aligned with anybody. I'm aligned with the United States of America and for the good of the world. I'm aligned with the world and I want to get this thing over with. You see the hatred he's got for Putin. It's very tough for me to make a deal with that kind of hate. He's got tremendous hatred and I understand that, but I can tell you the other side isn't exactly in love with, him either. So it's not a question of alignment. I'm aligned with the world. I want to get the thing set. I'm aligned with Europe. I want to see if we can get this thing done. You want me to be tough? I could be tougher than any human being you've ever seen. I'd be so tough. But you're never going to get a deal that way. So that's the way it goes. Can I ask you? Sure. Yeah? Yeah. Okay. So he occupied our parts, big parts of Ukraine, part of East and Crimea. So he occupied it on 2014. So during a lot of years, so I'm not speaking about just Biden, but those time was Obama, then President Obama, then President Trump, then President Biden, now the President Trump, and God bless, now President Trump will stop him. But during 2014, nobody stopped him. He just occupied and took. He killed people. You know what the contact line? 2015. 2014. 2014 and 2015. 2014. Yeah. So I was not here. Yeah, but That's exactly right. Yes, but during 2014 till 2022, the situation the same. The people are been dying on the contact line. Nobody stopped him. दरअसल ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में मिनरल डील के लिए बुलाया था। इस डील में दोनों देशों के बीच इंटेलिजेंस, हथियार और आर्मी पर समझौता होना था, जिसके लिए ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुंचे थे। डील पर हस्ताक्षर करने से पहले दोनों नेताओं ने मीडिया के सामने बैठकर बातचीत शुरू की। बातचीत की शुरुआत रूस यूक्रेन जंग से हुई। इस बीच दोनों के दरमियान धीरे धीरे गहमागर्मी शुरू हुई, जिसने आगे चलकर बहस की शक्ल इख्तियार कर ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा कि हमें मत बताओ कि हम क्या महसूस करने जा रहे हैं। हम एक समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये तय करने की स्थिति में नहीं हैं कि हम क्या महसूस करने जा रहे हैं। हम बहुत अच्छा और बहुत मजबूत महसूस करने जा रहे हैं। आपने खुद को बहुत बुरी स्थिति में रख दिया है। आपके पास अभी कार्ड नहीं है। आप लाखों लोगों के जीवन के साथ जुआ खेल रहे हैं। A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on position this to question. dictate that. That's exactly Remember what this. you're doing. I'm not You're in dictating. no position to dictate what we're going to feel. You We're going to feel very you will good. feel influenced. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel influenced. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about From the it. very beginning of the war. You're not Mr. in a good Brown, position. You don't have the cards right now. With us, you start having not cards. playing But cards. right now, you I'm don't. very You're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're gambling I'm the with the president lives in of war. millions of people. You think You're gambling with World War What III. what you're You're speaking gambling about? with What you're World speaking War about? III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. You think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not Yeah. speaking loudly. Your country is Can I- in big can I- trouble. can I Wait a answer? minute. No. Can You've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. लगभग 45 मिनट डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बीच ऑन कैमरा तीखी बहस चली और दोनों ओर से आक्रामक तेवर देखने को मिले।
करीब पौने घंटे की इस बातचीत का वीडियो सामने आया, जिसमें ट्रंप और ज़ेलेंस्की की बातचीत तीखे नोकझोंक में नजर आई, जिसे देखकर पूरी दुनिया चौकन्ना रह गई है। दोनों नेताओं के बीच अमेरिका में वाशिंगटन डीसी स्थित व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई। हालांकि इस मीटिंग का मुद्दा मिनरल डील पर समझौता था, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े जंग को खत्म करने की बात पर दोनों भिड़ गए। इस मुलाकात के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से पूछा गया कि वो सूट यानी कोट पैंट क्यों नहीं पहनते। इस पर जवाब देते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस से युद्ध खत्म होने के बाद ही वो सूट पहनेंगे। Why don't you wear a suit? I will wear a costume after this war will finish. ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से कहा कि उन्हें यूक्रेन के साथ होना चाहिए, लेकिन वो रूस का साथ दे रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के युद्ध विराम से इनकार किया और कहा कि हमें सिर्फ युद्ध विराम नहीं चाहिए। बात करते करते ज़ेलेंस्की को कहा गया कि वो व्हाइट हाउस से चले जाएं। ट्रंप ने मीडिया के सामने ही उनसे बात करनी बंद कर दी। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए मीडिया को भी बाहर कर दिया गया। इस मुलाकात के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिनरल डील किए बिना ब्रिटेन चले गए और ट्रंप छुट्टियां मनाने के लिए फ्लोरिडा चले गए। ऐसे में चर्चा है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देश के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा यूक्रेन को दी गई आर्थिक और सैन्य मदद का मुआवजा मांग रहे हैं। अमेरिका को किसी तरह इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न चाहिए, ये ट्रंप की इच्छा है। वो अक्सर कहते हुए सुने गए हैं कि यूक्रेन को सपोर्ट के बदले अमेरिका को 500 अरब डॉलर चाहिए, लेकिन 350 अरब डॉलर पर ज़ेलेंस्की बात फाइनल करना चाहते थे। ट्रंप ने ये भी शर्त रखी कि इसके बदले यूक्रेन को कुछ नहीं मिलेगा, जबकि ज़ेलेंस्की सुरक्षा की गारंटी मांग रहे थे। इस मुलाकात के बाद ज़ेलेंस्की ने फॉक्स न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि ये घटना दोनों पक्षों के लिए ठीक नहीं है। अगर अमेरिका अपना समर्थन वापस लेता है तो रूस के खिलाफ यूक्रेन की रक्षा करना हमारे लिए कठिन हो जाएगा। ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ हुए टकराव को पब्लिकली ब्रॉडकास्ट करने पर भी हैरानी जताई। इस दौरान उनसे पूछा गया कि क्या वो अमेरिका के राष्ट्रपति से माफ़ी मांगेंगे। इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अमेरिका के राष्ट्रपति का सम्मान करता हूं, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। वहीं ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर अमेरिका का धन्यवाद करते हुए लिखा कि धन्यवाद अमेरिका, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद, इस यात्रा के लिए धन्यवाद, धन्यवाद अमेरिकी राष्ट्रपति, कांग्रेस और अमेरिकी लोगों का। यूक्रेन को न्यायपूर्ण और अस्थायी शांति की आवश्यकता है और हम ठीक उसी के लिए काम कर रहे हैं। इस घटना से साफ हो गया है कि अब अमेरिका यूक्रेन के साथ नहीं है, लेकिन ऐसे में कई देशों ने यूक्रेन का साथ देने की घोषणा की है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यूक्रेन का सपोर्ट करते हुए कहा कि रूस एक हमलावर है, यूक्रेन के लोग इस हमले के शिकार हैं। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी यूक्रेन के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हुए कहा कि कनाडा न्यायपूर्ण और अस्थायी शांति प्राप्त करने में यूक्रेन और यूक्रेन के वासियों के साथ खड़ा रहेगा। वहीं नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर और चेक राष्ट्रपति पावेल ने यूक्रेन को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। डच के विदेश मंत्री कैस्पर ने फिर से दोहराया है कि उनका समर्थन यूक्रेन को है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अभी अभी अपने यूक्रेनी मित्र और सहकर्मी एंड्री से बात की है। मैंने यूक्रेन के लिए अपना पूरा समर्थन दोहराया है, चाहे जो भी करना पड़े, जितना भी समय लगे। स्वीडन के प्रधानमंत्री ऑफिस की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि स्वीडन यूक्रेन के साथ खड़ा है। आप न केवल अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, बल्कि ये पूरे यूरोप के लिए लड़ रहे हैं। इसके साथ ही आयरलैंड के उप प्रधानमंत्री साइमन हैरिस, जर्मनी की वर्तमान विदेश मंत्री एनालेना, पोलिश प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने सोशल मीडिया पर यूक्रेन को समर्थन देने की बात की और लिखा कि यूक्रेन अकेला नहीं है। अब सवाल ये है कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच हुई तीखी बहस यूक्रेन और रूस की जंग को और भड़का देगा, या युद्ध विराम की कोई और शक्ल निकल पाएगी, या इस बातचीत के बाद यूक्रेन का फ्यूचर दांव पर लग जाएगा।